Good morning everyone. Today we will discuss our another topic of quadratic equation. There we will discuss about nature of the roots without solving the quadratic equation. That we call it discriminant. That term is under the square root. So if ax square plus bx plus c is equal to 0 is your general equation of quadratic equation, and when you find the x value you apply the quadratic equation formula minus b plus minus b square minus 4ac under square root upon 2a, where a, b, c belongs to the real numbers. Real number means it can be rational ABC or it can be irrational, because both are part of the real numbers. There is a two part of real numbers, either it will be rational or either it will be irrational. Okay, so in that time you will deal about basically three conditions. Either your discriminant, that discriminant means that term under the root, either it will be greater than 0, either it will be 0, or either it will be less than 0. Okay, so when it will be greater than 0, you directly write real and in unequal roots. Real and unequal roots. That means it will be positive, it will be rational numbers, or unequal. That means any two roots will be there. But if it is equal to 0, that means if this part is 0, so only minus b upon 2 is left as a root. That time we call it as equal roots. Either we can write real or equal roots, or either we can write rational or equal roots. But what happened when it was a negative, like in this square root, if negative term is there, then you write in up to class 10th it is no solution because negative root is there. But here if b square minus 4ac less than 0 is there, so we can consider as roots are imaginary or complex root. If b square minus 4ac is a perfect square, in this if your number is come under the perfect square, that means your roots are rational, so it will not be under the square root. But if this under the root, if term is not a perfect square, like it will be like 13 root something like that, here minus 4ac greater than 0 वाली कंडीशन आती है, पॉजिटिव वाली कंडीशन आती है, तो दो तरह की ऑप्शंस आती हैं रूट के अंडर. एक तो होगी परफेक्ट स्क्वायर, एक होगी परफेक्ट स्क्वायर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो उस कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर को तो आप रैशनल रूट कंसिडर करोगे, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर के अंदर वो इरेशनल रूट्स आ जाते हैं. बट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल्स. तो तीन तरह की कंडीशंस होती हैं रूट्स की, या वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, या वो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, या इक्वल और अनइक्वल होंगे इरेशनल. तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विदाउट सॉल्विंग, विदाउट फाइंडिंग दिस एक्स वैल्यू, व्हाट it be the roots of your equation. Roots of the equation lies in the three conditions. तो थ्री conditions पे लाई करती है, या आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा. तो अगर तो आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 में दो कंडीशन आएंगी, रैशनल या इरेशनल की. अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपका रूट की फॉर्म में आंसर आएगा एक्स की वैल्यू. तो आप यहाँ से जज कर सकते हो. इज इक्वल टू 0 में तो आपका रूट पार्ट 0 ही हो जाएगा, तो एक ही सिंपल इक्वल रूट्स आएंगे, और लेस देन 0 में आपके जो आपके इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे. सो दैट इज डेल्टा discriminant delta. So when you check for the delta, so that means b square minus 4ac, that is m plus 6 whole square minus 4 into m plus 6 into 2. So when you open this a plus b whole square formula here, m square plus 36, 6 square 36 plus 12m, then here minus, that is 4 into 2, so that will be minus 8m, and minus 8 into 6, 48, minus 48, so it will be minus 8m then minus 48. Okay, when you solve, go further, so if you join that one, like m square
So this is 12m minus 8 gives you 4m. Then 36 minus 48 give you minus 12. Okay, if I go with the factors of this, so this is 4, this is minus 12. So I can make the combination of 6 and 2 here. M square plus 6m minus 2m then minus 12. Because 6 minus 2 give me 4 and 6 multiply minus 2 give me minus 12. So if I take m common here, so m plus 6 minus 2 m plus 6, and if I take m plus 6 common, so that give me m plus 6 and m minus 2. That means in the number line, like if it is, this is your number line, integer line, okay, if it is 0, like from here m, if you go with the zero product rule, m plus 6 is equal to 0, so that means something is there, is minus 6 is here and 2 is here. Okay, so we want to check in which intervals our roots will be m. So we will discuss according to this discriminant our 3 possibilities, because we don't know the m value here. Okay, after knowing the value of m, we can exactly tell about whether it is greater than 0, whether it is equal to 0, or whether it is less than 0. Okay, so that means कि either वो 6 से कम होगा, either वो -6 और 2 के बीच में होगा, या वो 2 से ग्रेटर देन होगा. तो इस तरह की मेरी कंडीशन जाएगी, या वो -6 से -∞ टू -6 के बीच में होगा, या -6 टू 2 के बीच में, या फिर 2 के बियॉन्ड. ओके, दैट इज ग्रेटर देन 2. तो इस तरह से दैट वी विल मोर क्लियर अबाउट अवर टेबल, सो दैट आई कैन गो विद द टेबल हियर. सो व्हेन यू ड्रॉ द टेबल, so I will go with the means here m is less than -6, m is equal to -6, then -6 less than m less than 2, either m is equal to 2 and m is greater than 2. So we have to discuss about these conditions here. Either वो -6 से कम होगा, या एग्जैक्ट -6 होगा, या -6 और 2 के बीच में लाई करेगा, या वो एग्जैक्ट 2 होगा, या वो ग्रेटर देन. तो ये हमारी पॉसिबिलिटी कंडीशन होगी m की, जो यहाँ से नेचर ऑफ द रूट डायरेक्टली डिफाइन करेंगे. पहले हम चलते हैं हमारा m प्लस 6, जो हमारा था m प्लस 6 एंड m माइनस 2. तो ये मेरी 2 रूट फैक्टर्स थे जो मुझे जज करना था कि वो कहाँ पे लाई करते हैं, कि इस किस वाले स्लॉट में लाई करते हैं. तो यहाँ हम जज करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को. अगर वो उस स्लॉट में लाई करते हैं तो वहाँ पे हम नेगेटिव साइन देंगे. जिस स्लॉट में एग्जैक्ट पे लाई नहीं करते, क्योंकि एग्जैक्ट पे तो हम जहाँ पे लाई नहीं करता वहाँ हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे यहाँ पर. अब जैसे यहाँ पे m प्लस 6 है, बट यहाँ पे इस वाले स्लॉट में m की वैल्यू लेस देन -6 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करोगे एग्जैक्ट, तो वो -6 आ जाएगी. तो ये एग्जैक्ट -6 वाला स्लॉट 0 हो जाएगा. ओके, 0 से पहले, तो अगर मैं इस स्लॉट से जाऊँगी तो m लेस देन -6, तो दैट मीन्स इट इज़ कवर्ड, लेस देन -6 इज़ कवर्ड. तो जो कवर हो गया उसमें हम माइनस का साइन लगाएंगे. अब -6 से अभी लेस देन है, -6 के बियॉन्ड वैल्यू नहीं गई, क्योंकि m प्लस 6 वाला स्लॉट है. तो m प्लस 6 वाला स्लॉट मीन्स -6 तक ही गया, -6 को क्रॉस नहीं किया. तो जिसको क्रॉस नहीं किया जॉन से स्लॉट को, उसको हम पॉजिटिव साइन कंसिडर कर देते हैं. ना ही वो -6 और 2 के बीच में है, ना ही m इज़ इक्वल टू 2 है, ना ही m इज़ ग्रेटर देन 2 है. अब आ गया m-2 वाला स्लॉट आ गया. तो m-2 वाला स्लॉट ऑलरेडी -6 को कवर कर चुका है, तो जिसको कवर कर चुका है वहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे. ओके, यहाँ पे m-2 इज इक्वल टू 0, अभी इक्वल टू 0 तक नहीं पहुँचा, 2 से कम है, तो m-2 मीन्स 2 से पहले वाली वैल्यू, दैट मीन्स ये भी इसके स्लॉट में आता है. पर यहाँ पे m इज़ इक्वल टू 2 वाले स्लॉट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे.
m-2 को। अब m-2 इज इक्वल टू 0 की m इज इक्वल टू 2 तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई जिसको हमने 0 कंसिडर किया। ओके, तो यहाँ पे तो ग्रेटर देन 2 को तो क्रॉस नहीं किया, 2 के बियॉन्ड नहीं गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे m+6 m-2 को, इन दोनों फैक्टर्स को, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, यहाँ पे 0 नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम को। तो बेसिकली हम 3 कॉलम्स ही कंसिडर करते हैं। m इज़ लेस देन -6, दैट मीन्स ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, m इज़ ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नेगेटिव लेस देन 0 कब होगा, जब वो -2 और 2 के बीच में आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कब होगा, जब वो -6 और 2 के बियॉन्ड जाएगा। तो ये टेबल मुझे ये शो ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्दर अगर मूव करूँगी तो अब मुझे 3 स्लॉट्स बताने हैं। पहला जो स्लॉट था b² - 4ac इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर मेरे पास m+6 m-2 इज इक्वल टू 0 आता है तो 0 प्रोडक्ट रूल से मेरी m की वैल्यू डायरेक्टली -6 और 2 आ जाएगी। ओके, सेकंड ये स्लॉट कह रहा है कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में कौन कौन से इंटरवल्स में आ रहा है, जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट कौन सी m की वैल्यू होगी, m की वैल्यू कौन सी होगी कि मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो m की वैल्यू मेरी दैट इज लेस देन -6 एंड ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स m इज लेस देन -6 और m इज ग्रेटर देन 2, नॉट एग्जैक्ट 2, कि एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट -6 कंसिडर नहीं करेंगे, कि अगर मेरी m की वैल्यू -6 से कम होगी या ग्रेटर देन 2 होगी तो तभी मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कंसिडर होगा। थर्ड है कि अगर मेरा b² - 4ac लेस देन 0 कौन से स्लॉट में होगा, दैट मीन्स m+6 एंड m-2 लेस देन 0 कौन से स्लॉट में होगा, अगर मेरी m की वैल्यू -6 और 2 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे -6 लेस देन m लेस देन 2। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे एक रूल भी बन जाता है कि जब भी मेरे पास 2 फैक्टर्स होंगे इज इक्वल टू 0 आएंगे तो m की जो वैल्यू डायरेक्टली एग्जैक्टली उन पर जाएगी, कि मेरे वेरिएबल की वैल्यू 2 फैक्टर्स इज इक्वल टू 0 होंगे तो जो भी वहाँ से वैल्यू निकलेगी तो वो एग्जैक्टली उनके इक्वल होगी। बट अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे जो मेरी m की वैल्यू निकलेगी, जो रूट की वैल्यू m की वैल्यू निकलेगी, वो उन वैल्यूज़ के बियॉन्ड लाई करेगी, और लेस देन 0 में विद इन उस m की वैल्यू के विद इन लाई करेगी, कि -6 और 2 के बीच में। तो हम यहाँ से रूट भी जज कर सकते हैं कि ये जो m वाली जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, कि अगर ये इज इक्वल टू 0 होगा तो इसकी m की रूट वैल्यू -6 और 2 एग्जैक्ट होगी, ग्रेटर देन 0 पे -6 2 के बियॉन्ड लाई करेगी, और लेस देन 0 पे विद इन